The next pattern is the factory pattern. The purpose of factory pattern is to encapsulate object creation. Okay, lady comes again. Let's see what she has to say. Okay, it's been 3 chapters and you still have not answered my question about new. We are not supposed to program to an implementation, but every time I use new, that's exactly what I am doing right? When you see new, think concrete. Yes, when you use new, you are certainly instantiating a concrete class. So that's definitely an implementation, not an interface. And it's a good question. You have learned that tying your code to a concrete class can make it more fragile and less flexible. So this is what we are doing. We want to use interfaces to keep code flexible, and on the other hand, but we have a concrete instance of concrete. We have to create an instance of a create class. तो राइट साइड पे कंक्रीट क्लास है और लेफ्ट साइड पे इंटरफेस यूज कर रहे हैं हम. तो इसको एतराज़ ये है कि राइट साइड पे कंक्रीट क्लास का नॉलेज चाहिए आपको आपके कोड में. तो जब भी अपने कोड में आपको कंक्रीट क्लास का नॉलेज चाहिए होगा, इट मीन्स that particular code is dependent on the knowledge of concrete class. So that is violating the principle. Must we say that program to an implementation, but we are having visibility of concrete class. So this problem can be solved by the factory pattern. When you have a whole set of related concrete classes, often you are forced to write code like this. For example, आप कहते हैं कोई डिसीजन लेते हैं आप कहते हैं जी अगर फॉर एग्जांपल पिकनिक ट्रू है तो मेलर डक का इंस्टेंस बने, अगर हंटिंग ट्रू है तो डिकॉय डक का ऑब्जेक्ट बने, अगर इन बाथटब ट्रू है तो रबर डक का इंस्टेंस बने. तो इस किस्म का आप जनरली आपने जब कंक्रीट क्लासेस बनानी होती हैं तो आप इस किस्म का डिसीजन करते हैं. मे बी यू कैन यूज़ अ स्विच स्टेटमेंट और यू कैन यूज़ if else statements, and based on those decisions you create concrete classes. So we have a bunch of different duck classes and we don't know until runtime which one we need to instantiate. तो अपने कोड में हम इस तरीके से लिख देते हैं. अभी रन टाइम पे हमें पता नहीं होता कि जो भी रन टाइम पे हम डिसीजन होगा तो वो एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. लेकिन नॉलेज जनरली हमारे कोड में फिर इस तरीके से बहुत सी कंक्रीट क्लासेस का नॉलेज इंक्लूड करना पड़ जाता है. सो व्हाट्स रॉन्ग विद न्यू? Technically, there is nothing wrong with new. After all, it's a fundamental part of Java. The real culprit is our old friend change and new and how change impacts our use of new. तो अगर कोई ऐसी स्टेबल क्लासेस को इंस्टेंशिएट करना है तो कोड में आप यूज़ कर लें, उसका मसला नहीं है. लेकिन इफ़ देयर इज़
there are chances of some change in the instantiation logic और number of classes plus minus हो सकती हैं, तो फिर मसला होगा. So what can you do? It's time like these that you can fall back to object-oriented design principle to look for the clue. Remember, our first principle deals with the change and guides us to identify the aspects that vary and separate them from what stays the same. तो हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था कि जो चीज़ अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई करें वट एवर इज चेंजिंग, उससे उसको सेपरेट करें. जो जो कोड जिस कोड में चेंजेस का इम्कान नहीं है वो कोड सेपरेट होना चाहिए, और जिस कोड में चेंजेस हो सकती हैं वो कोड सेपरेट होना चाहिए. ये एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पिज़्ज़ा. For example, you have a pizza shop, and as a cutting edge pizza store owner in object, while you might end up writing some code like this. कि आप फॉर एग्जाम्पल एक पिज़्ज़ा बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट आ जाएगा पिज़्ज़ा में, और फिर पिज़्ज़ा पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे आप. फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा को आप प्रिपेयर करेंगे, एक सीक्वेंस में काम करेंगे, फिर बेक करेंगे, फिर उसे कट करेंगे डिफरेंट पीसेस में, फिर उसको बॉक्स में डालेंगे और पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो जाएगा, पूरा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा. देन यू आर गोइंग टू रिटर्न द पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा रिटर्न हो जाएगा. तो इसका मतलब है whoever calls the order pizza class, he is ultimately going to get an object of pizza, लेकिन पिज़्ज़ा पे ऑर्डर पिज़्ज़ा पे कुछ प्रोसेस होगा. पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट पे एक सीक्वेंस में कुछ प्रोसेसेस होंगे, और जब फाइनली पिज़्ज़ा को बॉक्स में बंद कर देंगे हम, तो देन द पिज़्ज़ा इज गोइंग टू बी रिटर्न टू द क्लाइंट हु इज ऑर्डरिंग द पिज़्ज़ा, एंड फॉर ऑर्डरिंग द क्लाइंट इज कॉलिंग द क्लास order pizza. For flexibility, we really want this to be an abstract class. अब ये कोई कंक्रीट पिज़्ज़ा क्लास है, तो इस पॉइंट पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास. अगर इस तरह का कोड, इस कोड में सिर्फ कोई एक ही तरह का पिज़्ज़ा हम इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा तरह के पिज़्ज़ा नहीं कर सकते. एक पिज़्ज़ा है जो हम बना रहे हैं, और वी विल क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दैट पिज़्ज़ा, एंड देन वी डू सम ऑपरेशन. तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए. तो फिर ये है कि देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये मसला है. So for flexibility, we really want this to be an abstract class or an interface, but we cannot directly instantiate either of those. उन्हें हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते. तो ये एक प्रोसीजर है जो कि रेगुलर प्रोसीजर है, हर पिज़्ज़ा पे ये प्रोसीजर करना है. तो ये समझ सकते हैं हम कि ये वाला जो कोड है, ये कोड तो है कांस्टेंट या फिक्स कोड है, लेकिन पिज़्ज़ा जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. तो उसके लिए फिर हम इसी ऑर्डर पिज़्ज़ा क्लास को, अगर एक से ज़्यादा पिज़्ज़ाज हैं हमारे पास, तो फिर इस ऑर्डर पिज़्ज़ा क्लास को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम मॉडिफाई करते हैं ऑर्डर पिज़्ज़ा क्लास को, हम कहते हैं जी एक स्ट्रिंग पास कर दें इसको, किस टाइप का पिज़्ज़ा चाहिए. तो जो भी पिज़्ज़ा को ऑर्डर करे वो साथ स्ट्रिंग पास करे कि जी मुझे चीज़ पिज़्ज़ा चाहिए, ग्रीक पिज़्ज़ा चाहिए, पेपरोनी चाहिए, कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए. तो जब ऑर्डर दें तो साथ ही पिज़्ज़ा की स्ट्रिंग पास कर दें, एंड बेस्ड ऑन दैट स्ट्रिंग वी मेक टेक सम डिसीजन, और फिर उस डिसीजन की बेस पे हम पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें. फॉर एग्जांपल
अगर हम चीज़ पिज़्ज़ा को क्रिएट करते हैं तो इट विल गो इन द रेफरेंस ऑफ पिज़्ज़ा, जो कि हमने एक पिज़्ज़ा का रेफरेंस बनाया हुआ है, विच विल बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मे बी इंटरफेस। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पिज़्ज़ा में डाल देंगे, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ग्रीक पिज़्ज़ा का तो ये भी उसी रेफरेंस में डालेंगे, तीसरा वाला करते हैं तो भी वो भी उसी रेफरेंस में डालेंगे। जब पिज़्ज़ा को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा देन द सेम पिज़्ज़ा इज गोइंग टू बी यूज, और उस पर आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा, पिज़्ज़ा प्रिपेयर बेक कट बॉक्स, एंड देन प्रिपेयर्ड ऑब्जेक्ट प्रोसेस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी रिटर्न बाय द ऑर्डर पिज़्ज़ा मेथड। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो जो डिस्कशन हुई है अब तक, कोई एनी क्वेश्चन? जी क्लियर है कोड अब तक? Yes, एनीवन sir. हु कैन रिप्लाई? यहाँ पे यहाँ पे इश्यू क्या चीज़ है कि न्यू हमें बार बार हर हर टाइप ऑफ पिज़्ज़ा के लिए हमें न्यू लिखना पड़ रहा है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन में चेंज। बिल्कुल, यहाँ पे इशू यही है कि पिज़्ज़ा, पहली बात है कि अगर कोई एक ही पिज़्ज़ा होता जैसे पिछला कोड है तो फिर तो कोई बस एक पिज़्ज़ा है, अब पता है जी एक ही पिज़्ज़ा में डील करना है, पिज़्ज़ा की कोई वैरायटी नहीं है हमारे पास, तो फिर तो ये कोड ठीक है। लेकिन अगर पिज़्ज़ा में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा तो वी विल बी रिक्वायर्ड टू हैव मल्टीपल पिज़्ज़ाज, तो फिर हम शायद अपने कोड को इस तरह मॉडिफाई करेंगे कि हम ऑर्डर पिज़्ज़ा में कोई स्ट्रिंग पास कर दें, कोई डिसीजन लें, और फिर जितनी तरह के पिज़्ज़ा बनाते हैं और उनके सारे कॉल्स लिख दें इसके अंदर, और फिर लेकिन प्रोसेस अल्टीमेटली सारे पिज़्ज़ाज पे एक ही होगा, प्रिपेयर बेक कट बॉक्स। तो अब इस कोड में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है आपको? इस कोड में भी प्रॉब्लम है, मल्टीपल पिज़्ज़ाज हैं, कुछ सर कोड पिज्जाज है। अगर हाँ पिज़्ज़ाज अगर अगर पिज्जाज की टाइप्स और आ जाएं तो फिर टाइप्स उनको किस तरह आज कम करना पड़ जाए, कोई ज़्यादा करना पड़ जाए, तो एक बेसिकली क्लास को ये जो कोड है जो ग्रे में नज़र आ रहा है, इसमें एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में कोई चेंज आ सकता है, और ये जो नीचे कोड है ये हमें पता है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वही फॉलो होना है। तो देयर इज अ कोड विच मे चेंज एंड देयर इज अ कोड विच विल नॉट चेंज। तो दो तरह का कोड मिक्सअप हुआ हुआ है अभी इस मेथड के अंदर। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी कुछ अरसे बाद ये ग्रीक पिज़्ज़ा हमने बंद कर दिया है देना, और हमने क्लैम पिज़्ज़ा और वेजी पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। सो दिस कोड क्रिएशन पिज़्ज़ा क्रिएशन कोड इज वेरिंग, and other this code is fixed, no problem। तो एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यानी कि अब हमने यही देखा है कि जी ऑब्जेक्ट क्रिएशन मसला नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएशन में वेरिएशन, दैट इज अ प्रॉब्लम, वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट क्रिएशन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर आपका कोड है जो फिक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कोड तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट का कोड क्रिएशन का कोड वेरी भी हो रहा है, वेरिएशन भी एक्सपेक्टेड है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो व्हाट कैन वी डू? So what we can do, that the code which is likely to change, which we should pull out this code, इस कोड को बाहर निकाल लें, और ऑर्डर पिज़्ज़ा में अब सिर्फ वही कोड रह जाएगा जो कि फ्यूचर में चेंज होने का इम्कान नहीं है, और जो कोड चेंज होने का इम्कान है उसको हम बाहर निकाल लिया हमने, और इस कोड को हम एक पिज़्ज़ा फैक्ट्री एक पिज़्ज़ा फैक्ट्री बनाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे। इसका काम यही होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये फैक्ट्री का मतलब ये है कि इट इज क्रिएटिंग पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट्स। तो इसको हम देखते हैं कैसे ये काम करेगी। सो नाउ वी नो दैट वी वुड बी बेटर ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन आउट ऑफ ऑर्डर पिज़्ज़ा मेथड, इससे बाहर निकालेंगे हम। बट हाउ? वेल, what we are going to do is take the creation of code and move it out into another object
that is only going to be concerned with creating objects or pizzas. So we pull out the object creation code out of the order pizza method. तो object creation का कोड बाहर निकाल दिया हमने. So what are going to go here? तो यहाँ पे क्या कोड डालना चाहिए जो कि इसको एक्सेस करे. आगे देखते हैं. So what we can do that we can make a statement, write a statement here, create pizza statement. और ये जो create pizza की statement होगी ये उस class में execute होगी. और we can pass a string. और जब अब ये जो create pizza method होगा it is going to return the object of pizza. जब object pizza का मिल जाएगा तो फिर अच्छा सॉरी ये पिज़्ज़ा ये जो ये जो हमने कोड बाहर निकाला है इस कोड को किससे ऑर्गेनाइज करना है हमने. इस ये पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करना है हमने. सो दिस इज अ कोड विच वी हैव पुल्ड आउट. इस कोड को हमने डाला है क्लास में. वी कॉल इट अ सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री. और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया क्रिएट पिज़्ज़ा का. दिस मेथड कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग. और वही जो इफ एल्स लॉजिक थी वो सारी की सारी पूरे का पूरा कोड यहाँ पे ला कर रख दिया हमने. अब ये इसका मतलब है कि इस फैक्ट्री का जब मेथड कॉल किया जाएगा क्रिएट पिज़्ज़ा का तो इसको जब हम स्ट्रिंग पास करेंगे बेस्ड ऑन दैट स्ट्रिंग इट इज गोइंग टू instantiate an object and then it is going to return. तो ये काम करेगा ये. तो ये एक तरह का पिज़्ज़ा फैक्ट्री हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये पिज़्ज़ा के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली क्लास है. तो एनी क्लास विच क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ फैक्ट्री क्लास. नाउ इन अ पिज़्ज़ा स्टोर हाउ आर वी गोइंग टू. ये इसमें ऑर्डर पिज़्ज़ा क्लास मेथड था. ऑर्डर पिज़्ज़ा मेथड था पिज़्ज़ा स्टोर क्लास के अंदर. और ऑर्डर पिज़्ज़ा मेथड में इस जगह से हमने कोड निकाला है और इस जगह पे हमने स्टेटमेंट लिख दी फैक्ट्री डॉट क्रिएट पिज़्ज़ा. और फैक्ट्री क्या चीज़ है. फैक्ट्री इज अ रेफरेंस ऑफ अ सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री. जो हमने पीछे कोड देखा है क्लास जो पीछे क्लास देखी है उसका रेफरेंस है ये. और पिज़्ज़ा स्टोर के कंस्ट्रक्टर में हम इसका रेफरेंस ले लेंगे. सिंपल पिज़्ज़ा फैक्ट्री का रेफरेंस लेके यहाँ रख लेंगे इस जगह पे. और जब रेफरेंस आ जाएगा देन वी कैन कॉल द क्रिएट पिज़्ज़ा मेथड अगेंस्ट दिस फैक्ट्री रेफरेंस. और इसको स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन होके एंड यू विल गेट द ऑब्जेक्ट हियर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कॉल द क्रिएट पिज़्ज़ा. After taking some decision with if else statement is going to return an object, it will be available here, and then all other operations will be done, and the pizza will be prepared. Pizza will be returned back by the order pizza class. इसका मतलब है कि जो factory method है ये blank pizza object create return करेगी. फिर उस object पे काम होगा और फिर प्रोसेस पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा बाय द ऑर्डर पिज़्ज़ा मेथड. एंड दिस मेथड इज रिजाइडिंग इन पिज़्ज़ा स्टोर. इट हैज अ रेफरेंस ऑफ पिज़्ज़ा फैक्ट्री एंड इन ऑब्जेक्ट इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्टोर. एट द सेम टाइम इट गेट्स द रेफरेंस ऑफ द फैक्ट्री. सो इट गेट्स अ लिंकेज. जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है स्टोर का इसको लिंक मिल जाता है रेफरेंस मिल जाता है फैक्ट्री का और फिर वो फैक्ट्री को जब चाहे यूज कर सकता है. इस कोड में कोई कंफ्यूजन. सर अगर ये प्रिपेयर बेक कट इनमें भी सपोज हमें नए मेथड्स इम्प्लीमेंटेशंस लाने पड़े तो तब भी हम फैक्ट्री अलग अलग बनाएंगे इनकी. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. गुड क्वेश्चन. असल में होता ही है कि जब आप कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आप जनरली एक ही फैक्ट्री क्लास बना लेते हैं.
तो जितनी ऑब्जेक्ट क्रिएशन है ना वो उससे एक फैक्ट्री क्लास के अंदर डाल देते हैं, जिस किस्म के भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं आपने। तो मल्टीपल भी फैक्ट्रीज बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मल्टीपल फैक्ट्रीज बना सकते हैं और एक भी बना सकते हैं। लेकिन जनरली होता है कि आपने फैक्ट्री क्लासेस या क्लास उसको सेपरेट रखा जाता है, ताकि अगर कोई चेंजेस करनी पड़े तो सिर्फ उसी क्लास में करनी पड़े और बाकी किसी कोड को हमें ना छेड़ना पड़े। सिर्फ एक क्लास को चेंज करना पड़े अगर करना भी है तो, बाकी आपका कोड फिर जो है वो उसमें चेंजेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने आप में से जिन्होंने मॉडल ड्रिवन का कोर्स पढ़ा हुआ है उसमें अगर आपको याद हो तो हम जब ई कोर क्लासेस, आपने ई कोर क्लासेस को क्रिएट करने का कोड देखा था, तो वहाँ पे हम फैक्ट्री यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग ई कोर क्लासेस। तो वो भी वहाँ भी यही फैक्ट्री पैटर्न ही यूज़ हो रहा होता है। So we make use of a factory to create various सर classes. एक्चुअली सर वहाँ पे कुछ सिंगलटन फैक्ट्री कुछ लिखा इस तरह की चीज आती है, सिंगलटन फैक्ट्री, वो यही चीज असल है? में हाँ बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। असल में ये है कि जो फैक्ट्री क्लासेस होती है ना, जनरली दीज क्लासेस आर इम्प्लीमेंटेड एज अ सिंगलटन क्लास। जो फैक्ट्री क्लासेस होती हैं इनको एज अ सिंगलटन इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये सिंगलटन को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा और वहीं पे फिर हम डिस्कस करेंगे कि फैक्ट्री को एज अ सिंगलटन कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट लेक्चर, सिंगलटन। राइट सर। ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए जी आगे चलते हैं। ओके, so here we saw that there is a pizza store class. It has an order pizza method. Then there is a simple factory class, and whenever we create object of a pizza store, it gets the reference of this factory object during creation of its object. इसके कंस्ट्रक्टर में वो ऑब्जेक्ट इसके पास आ जाता है, सो दैट पिज़्ज़ा स्टोर कैन यूज द क्रिएट पिज़्ज़ा मेथड एनी टाइम इट डिजायर्स। और फैक्ट्री क्लास के आगे पूरा एक स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है जिन क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है फैक्ट्री। पूरा इस फैक्ट्री के बैक पे या बिहाइंड ऑफ दिस फैक्ट्री कंप्लीट such objects class structure is visible to the factory, और इनमें से कोई भी किसी भी क्लास का वो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पिज़्ज़ा एब्स्ट्रैक्ट पिज़्ज़ा क्लास विच देन देयर आर वेरियस कंक्रीट क्लासेस। तो फैक्ट्री को विजिबिलिटी है इन सब की, जबकि पिज़्ज़ा स्टोर को विजिबिलिटी नहीं है पूरे क्लास स्ट्रक्चर की। सो दिस इज बेसिकली the purpose is to make your pizza D-Link pizza store class from the concrete classes। उनके साथ पिज़्ज़ा स्टोर की, क्योंकि जो क्लाइंट ने पिज़्ज़ा स्टोर को एक्सेस करना है, पिज़्ज़ा स्टोर क्लास जो है वो आपकी उसमें वो फ्लेक्सिबल फ्रजाइल नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी रोबोस्ट क्लास, इसमें कोई कोड चेंज करना ना पड़े आपको। तो पिज़्ज़ा फैक्ट्री क्लास जो है वो सारी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जो ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं वो फैक्ट्री क्लास को विजिबल होते हैं। और पिज़्ज़ा स्टोर सिर्फ इसको मैसेज देते हैं जी, स्ट्रिंग पास करती है कि इस टाइप का मुझे ऑब्जेक्ट भेज दो। अब जितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है वो सारी छुपी हुई होगी बिहाइंड द फैक्ट्री। पिज़्ज़ा स्टोर के पास को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, इसने सिर्फ स्ट्रिंग पास करने के लिए मुझे इस टाइप का ऑब्जेक्ट देते हैं। अब कोई लॉजिक लगानी है, जो भी करना कराना है वो फैक्ट्री को पता है।
ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है इसमें. So your actually pizza store class remains de-linked with actual class hierarchy. Okay, now let's see the code structure. You can see there is a pizza store class, then client, test drive client is accessing the pizza store. Pizza store has reference of factory. Factory has visibility to whole class structure. And अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट है. क्लाइंट ने क्या करना है? क्लाइंट ने एक तो फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और दूसरा पिज़्ज़ा स्टोर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो पिज़्ज़ा स्टोर का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो जो फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो उसको पास कर देगा. अब यहाँ पे हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है कि हो सकता है हमारे कोड में मल्टीपल टाइप की फैक्ट्रीज हों. जैसे उसमें भी इकोर क्लासेस का जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें एक तरह की फैक्ट्री नहीं है, कई किस्म की फैक्ट्रीज होती हैं. तो जिस टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं उस तरह की फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आप इंस्टेंशिएट करके और वो पास कर देते हैं पिज़्ज़ा स्टोर को. तो पिज़्ज़ा स्टोर अपने पास रेफरेंस रख लेता है उसका. उसके बाद क्लाइंट ने सिंपली स्टोर को ये कहना है कि ऑर्डर पिज़्ज़ा एंड चीज़. बस ये उसने कहा जी आप ये काम करेंगे, मुझे चीज़ चाहिए, दैट्स ऑल. अब पीछे क्या हो रहा है? ऑर्डर पिज़्ज़ा ने फैक्ट्री को कहना है कि जी आप चीज़ का ऑब्जेक्ट मुझे दें. जब चीज़ का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इसको, फिर ये ऑर्डर पिज़्ज़ा उस पर प्रोसेस करेगा, प्रिपेयर, बेक एंड बॉक्स वगैरह सारा प्रोसेस करके, एंड देन इट ऑर्डर पिज़्ज़ा इज गोइंग टू रिटर्न पिज़्ज़ा. और वो जो पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट मिल गया है, देन यू मे से दैट वी ऑर्डर्ड द पिज़्ज़ा, गेट नेम वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. अगर इसको कोई और पिज़्ज़ा चाहिए वेजी तो बस ये कहेगा ऑर्डर पिज़्ज़ा वेजी. बाकी सारा प्रोसेस ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक क्लास में चली गई और ऑब्जेक्ट पे प्रोसेस एक क्लास में है, वो ऑर्डर पिज़्ज़ा क्लास के अंदर है. और लेट्स सी, try to understand code from the sequence diagram. So first of all we creating an object of a factory. ये फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर पिज़्ज़ा स्टोर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर वी आर कॉलिंग ऑर्डर पिज़्ज़ा अगेंस्ट द पिज़्ज़ा स्टोर. पिज़्ज़ा स्टोर ऑर्डर पिज़्ज़ा ने क्या किया कि उसने पिज़्ज़ा क्रिएट करने का, उसने क्रिएट पिज़्ज़ा कॉल कर लिया फैक्ट्री का. फैक्ट्री ने क्या किया है? उसने चीज़ पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और चीज़ पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसने वापस भेज दिया फैक्ट्री को. फैक्ट्री ने ये ऑब्जेक्ट भेज दिया पिज़्ज़ा स्टोर को. पिज़्ज़ा स्टोर पर सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिसीव हो गया इस जगह पे. अब अगला प्रोसेस शुरू करेगा पिज़्ज़ा स्टोर, और उसने सबसे पहले प्रिपेयर किया, बेक किया, कट किया, बॉक्स किया, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को वापस भेज दिया क्लाइंट को. एंड देन वी मे डू अदर प्रोसेस, गेट नेम वगैरह, जो भी उसको प्रोसेस करना है वो कर सकते हैं. तो क्रिएट पिज़्ज़ा में क्योंकि स्ट्रिंग हमने चीज़ की पास की थी तो ये चीज़ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा डिसीजन लेके. और ये जो स्टेटमेंट थी हमारी, वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा गेट नेम, तो ये गेट नेम इज बीइंग कॉल्ड अगेंस्ट द एब्स्ट्रैक्ट पिज़्ज़ा क्लास. इसकी एग्जीक्यूशन में दिखा दूं आपको. ये पिज़्ज़ा स्टोर मेथड है. लेट मी रन इट, debug.
pizza store debug configuration, and sorry, pizza store ये है मेन मेथड, ये है first of all let me create a क्या कर रहे हैं यार ये सर पहले से डीबग रन चल रहा है, मेरे ख्याल है उसको खत्म करना है। डीबग चल रहा था, डीबग अभी तो नहीं चल रहा मेरे ख्याल में, debug as ये आ गया स्टेटमेंट में, और here we are going to create ये अभी हमारी पिज़्ज़ा फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको फैक्ट्री ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा स्टोर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और साथ ही हमने फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट पास कर दिया इसको। तो स्टोर के अंदर आपको फैक्ट्री ऑब्जेक्ट मिल जाएगा 58 नंबर आईडी के साथ, ये वाला पास हो गया इसको। और इसके बाद हम ये ऑर्डर पिज़्ज़ा मेथड कॉल हुआ, क्रिएट पिज़्ज़ा मेथड आ गया, और यहाँ से हम ये इसने पिज़्ज़ा क्रिएट करके चीज़ पिज़्ज़ा रिटर्न कर दिया, दिस इज अ चीज़ पिज़्ज़ा। और अब इसके बाकी मेथड्स कॉल होंगे वन बाय वन। प्रिपेयर, बेक, बॉक्स, और नाउ इट इज रिटर्निंग द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होके यहाँ मिल गया इसको, अभी मिलेगा, ये मिल गया पिज़्ज़ा इसको यहाँ पे, चीज़ पिज़्ज़ा fully prepared। और now it is going to write we ordered a cheese pizza। अब वेजी पिज़्ज़ा इसी तरह चल पड़ेगा। सो ये वेजी पिज़्ज़ा भी सारा तैयार हो गया। सो दिस इज a code execution। So it ends today's lecture। And in next week we'll have a quiz। ठीक हो गया जी, आज नहीं लेंगे क्विज, कर लो अगले वीक में। Any question from the lecture, any other query etc, please let me know। चलें ठीक है, फिर we close today's lecture, stop recording।